बैरूने मुल्क नौकरी का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाने वाले फ्रॉडिये फौदगी का बहाना बनाकर अपनी कंपनी को ताला लगाकर फरार। तुर्की वास्ते 7 लाख ते 20,000 रुपया, बेटे दे पैसे दी 7 लाख रुपया, 3,60,000 रुपया वेटर का वीजा था जी, 2,07,000 4 लिफ्टर का वीजा था, 15-20 करोड़ का फ्रॉड कर गए। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बूटा है सर मेरा नाम। कितने दिन रहने वाले? मैं ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂ ਮੇਰਾ 446 ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਸੀ ਔਰ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡੀਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ? ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ, ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 7,20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 7,20,000 ਪੂਰੇ ਸੀ ਰਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਾਡੀਏ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸਰ, ਇੱਕ ਆਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸ ਟੋਬਾ ਟੈਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 187। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਰਕੀ। ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੈਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, 2 ਬੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੌਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ। 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ? FIU ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। FIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਇਆ। आज उन्होंने क्या 2 बजे ਤੁਹਾਡਾ पर्चा काट देंगे। आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, किस मुल्क जाना चाह रहे थे? मैं जी सऊदी में जाना चाहता था और इनका मैंने ऐड देखा है फेसबुक पे, तो उसका वो ऐड देख के मतलब यहाँ पे मैं आया और मैंने इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और 3,60,000 रुपया भाई बैंक अकाउंट, इनके अकाउंट में सऊदीया जाने के लिए। क्या नौकरी वहाँ पे मिलनी? वहाँ पे वेटर का वीज़ा था जी। इन्होंने कहा था आप सऊदीया चलेंगे, कितने दिन बाद जाएंगे, कब, क्या बोला था? 1 मंथ का टाइम दिया था जी, 1 मंथ का टाइम था, लेकिन 1 मंथ पूरा हो गया? 2 मंथ हो गए हैं जी, मतलब 2 मंथ हो गए हैं, 1 मंथ का टाइम दिया था इन्होंने। 2 मंथ, 1 मंथ ऊपर कोई भी नहीं मिलता? कोई भी नहीं है? कोई भी मिलता है यहाँ पे ना जी, बिल्कुल जी। ऑफिस छोड़ के भाग गए हैं और उनके नंबर भी बंद है, 8 के 8 नंबर बंद है। तो ये बताएं कि कहीं शिकायत दर्ज करवाई है? जी सर जी, बिल्कुल। FIA में भी दरख्वास्त दी है और DIG सब के पास भी दरख्वास्त दी है। DIG कौन से? ये इन्वेस्टिगेशन, मतलब वहाँ पे कल मैं गया था जी, तो उन्होंने मतलब दरख्वास्त मेरी ले ली है, तो इंशाल्लाह आज उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। लेकिन हमारी गुजारिश है मतलब मरीम नवाज साहिबा से और वज़ीर दाखिला। तो अब ये पैसे कैसे मिलेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं?
कोई बताया एफआईए वालों ने कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स रिकवर करवा के देंगे, पैसे रिकवर करवा के सर एफआईए वो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो आज हम उसको पर्चा देंगे उसके बाद जो है ना जी फिर इस घर को हम ओपन करेंगे तो आपका जो भी रिकवर हुआ इंशाल्लाह हम आपकी मदद कर रहे हैं जी, वो ये बात कर रहे हैं। वो तो साथ ले गए होंगे सब चीज़ें वगैरह, इस घर में रखा होगा तो घर जगह रेंट की नहीं है सर ये जगह बिल्कुल रेंट की है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अब वो मतलब खोलेंगे पता चलेगा। तो मतलब ये जो मालिक मकान है मतलब जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ है सर, उनसे भी गुजारिश है ताकि वो हमारी जो है ना ये वो हमारी मदद करें और हम उनके। आपने कहाँ जाना था? सऊदीया जाना था। कितने पैसे दिए? मैंने 2,07,000 रुपया दिए। 2,07,000 दिया है। कहाँ के रहने वाले हो? शक्करगढ़ के रहने वाला हूँ। तो आपने कैसे ऐड ही देखा था? मैंने भी ऐड देखा था। क्या नौकरी थी वहाँ पे? फोर्क लिफ्टर का वीज़ा था मेरा। किसकी? फोर लिफ्टर का वीज़ा था। फोर लिफ्टर का? जी जी। तो फिर अब क्या बना? कोई इस दौरान बातचीत हुई इनसे कि कब भेजेंगे, कब जाना है आपने? इन लोगों ने हमें 1 मंथ का टाइम दिया था मुझे, और डॉक्यूमेंट क्लियर किए थे, सभी पैसे लिए थे, और बोला था कि आधे पैसे तब देना जब आपका प्रोटेक्टर लगेगा। तो हम लोग ये भी आधे पैसे दिए थे? 3,20,000 2,07,000 दिया। 2,07,000 जी जी। और उसके बाद उन लोगों ने प्रोटेक्टर जो के लिए बुलाया, बोला था 1 मंथ के बाद आपको भेजा जाएगा। तो अभी हम इधर आए हैं तो ये इधर से रफू चक्कर हो गए। कहाँ से आए आप? मैं ये शाहजमाल से। आप लाहौर के ही हैं? और कहीं। तो आपको किसी ने भेजा था यहाँ पे, आपने भी ऐड नहीं, देखा? ऐड देख के फेसबुक पे ऐड देखा था। तो कहाँ जाना चाह रहे थे आप? ये सऊदी अरब मस्जिद क्लीनर की इन्होंने ऐड लगाया था, मस्जिद क्लीनर का, अच्छा। कि हम आपको मस्जिद एज ए मस्जिद क्लीनर भेजेंगे। तो कितने पैसे दिए? 1.5 लाख रुपया मैंने दिया, और 50-60 हज़ार रुपया जो दूसरे डॉक्यूमेंट पे लगा है, मेडिकल पे और दूसरी चीज़ों में लगा है। हाँ जी। तो अब कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया। 1 माह से? हाँ जी। कोई नहीं मिलता? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा। कोई राब्ता नंबर, किसी पे राब्ता हुआ, किसी करीबी बंदे से राब्ता हुआ? सारे नंबर बंद है इनके। वो जैस कैश अकाउंट है, जहाँ जहाँ हमने वो पेमेंटें की हैं, वो सारे नंबर। पैसे कैसे दिए? कैश दिए थे या इनके बैंक में ट्रांसफर किए? बैंक ट्रांसफर की थी। सब लोगों ने बैंक में ट्रांसफर किया? हाँ जी। कुछ लोगों ने कैश भी दिया है, कुछ ने वो सबके पास प्रूफ मौजूद है। ये सारे अपने प्रूफ लेने और एज ए मुद्दई के यहाँ पे आए हुए हैं कि भाई हमारा। आपने भी दरखास्त दी है, कहीं शिकायत की है? FIA में भी दरखास्त दी हुई है, और अभी इंशाल्लाह हम सारे साथी यहाँ से मिलके थाने में जा रहे हैं। थाने में भी दरखास्त देंगे? हाँ जी, वहाँ पे थाने। क्या नाम है आपका? फैजान। आपने कहाँ जाना था? मैंने कहीं नहीं था जाना, मैं अपने मामू के साथ इधर आया था। तो इधर बाय हैंड को 1.5 लाख दिया, और उसके बाद मेडिकल करवाया, फिंगर करवाए हैं, इतने चक्कर लगाए हैं इनके पास, फिर भी इन्होंने फ्रॉड करके भाग गए। आपने किधर जाना था जी? भाईजान सऊदी अरब क्या था, कम से कम 2 महीने हो गए इसी कल अपना काम में लगाया हुआ है। लड़के आगे बैठाई हुई हैं, तो अपना वो कह रहे कि अपना 1 महीने में काम हो जाएगा, पर काम नहीं हुआ। पैसे भी ले लिए हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, सब कुछ ओरिजिनल इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। FIA गए हैं 10 दिन पहले, तो दरखास्त वगैरह दी है, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह रेड करेंगे तो अपना जितना जो सामान होगा आपका मिल जाएगा। तो मालिक से भी 15 कॉल भी की पहले 10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। फिर अब FIA साहब का सब आदमी गए हैं, तो फिर उधर FIA दरखास्त दे के आज दे के दोबारा वापस आए। ये जिस रेंट की जगह पर ये दफ्तर बनाया था, उनके मालिक के मुलाजिम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिलावल। बिलावल साहब ये बताइएगा कि कहाँ हैं ये यहाँ के मालिक? यार ये जो हमारे पास किराएदार थे ना, ट्रैवल एजेंसी वाले, इन्हें 1.5-2 साल हो गए थे हमारे पास इधर आए हुए। जो नीचे ऑफिस इन्होंने ओपन किया है, ये जो एजेंसी लगाने के लिए बाहर वीज़े वगैरह, इन्हें 4-5 महीने हुए थे हमारे पास। तो 5-6 महीने के अंदर ही ना इनके ये बहुत रश शुरू हो गया था। जो एडें वगैरह लगा रहे थे, बंदे आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। जो नॉर्मल रूटीन वाइज काम चल रहा था इनका, रात को जाते थे 6-7 बजे और आते थे 11-12-1-2 बजे के दरमियान में रात को आते थे ऑफिस बंद करके। यही नॉर्मल पिछले इतवार वाले दिन ऐसी नॉर्मल रूटीन में बाहर निकले हैं, तो वापस आए हैं 11-12 बजे। इधर हमारे गार्डों ने भी बताया, वो आए हैं इधर, और इधर यहाँ पे उन्होंने बैनर लगाकर साथ ही फौज की वजह से निकल गए। और 1 हफ्ता सारे लोग, सब सारा स्टाफ, जो स्टाफ लेडीज़ वगैरह, वो उनको नॉर्मल ट्रेन पर छुट्टी दे दी। हफ्ते को छुट्टी दी, इतवार को वैसे ही बंद होता है, लेडीज़ इतवार को आती नहीं है, वो हफ्ते वाले दिन चली गई। जो ये इनकी अपनी लेबर थी, जो 3-4 जने इधर ऊपर सोते थे और 2-3 जने बाहर वान टाउन में रहते थे, वो अंदर ही थे। वो शाम को निकले और उसके बाद वापस नहीं बैनर लगा कर चले गए। 12-1 बजे के बाद उन्होंने बैनर लगाया, हमारे गार्ड ने बताया कि इधर बैनर लग गया है, और वो चले गए हैं। मालिक को भी इतला कुछ भी नहीं हुई है जो इस बिल्डिंग के हैं। ये कितने दिनों से आ रहे हैं लोग और कितनी तादाद है इनकी?
ये तादाद है हमारे पास जो कमो बिस्तर है ना, हमने 150-200 बंदा वहाँ पे थाने भेज दिया है। आपके बाद आ चुके हाँ हैं जी, जो मालिक इसके इधर का होना है इन ना, लोगों के अलावा है? इनके अलावा बहुत हमारे पास बंदे ही आए हैं। ये तो सारी नई शक्लें ना आज देख रहा हूँ, इनसे पहले भी जो है ना वो हमने बहुत ही बंदे वहाँ पे भेजे टोटल हैं। कितने लोग होंगे जिन लोगों को आपने डील किया? जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से ना वो कमो बिस्तर 15-20 करोड़ का फ्रॉड करके गए हैं इधर से। इतने कोई एक जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है ना 10-15 बंदों का, वो 1.5 करोड़ का है। अच्छा, वो आप लोगों से आगे मिल रहा है कि जी ये कहाँ गए? जो हमें अगर मिल रहे हैं, जो आगे एजेंट के जरिए आ रहे हैं या डायरेक्ट आ रहे हैं, फेस टू फेस इनके साथ मिले हैं। कोई बावल नगर का हो गया, कोई पत्तों की उकाड़े का, ये सारे है ना ये गाँव आप इलाकों लोगों ने राब्ता नहीं किया उन लोगों से कि फौदगी में गए थे, यहाँ पे लोग पीछे आ रहे हैं? जो मालिक है ना उसने खुद उनसे 3-4 लाख रुपए लिए हैं। 2-3 किराए उनके शार्ट है, बिजली पानी गैस के बिल तो उनका फोन नहीं उठा रहे, राब्ता नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब खत्म है। नंबर वगैरह सारा कुछ बंद है उनका। कोई एक नंबर चल रहा हो ना, इन्होंने इनको तसल्ली देने के लिए चेक भी दिए हैं। जो किसी को 2 लाख का बनाकर दिया, किसी को लाख का बनाकर दिया, वो जहाँ बैंक में देखा है, बैंक में 2000 के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। और इन्हें वीज़े जो लगे, इनकी टिकटें वगैरह सारी शो हो रही है नेट के ऊपर, हर शय क्लियर हो रही है, लेकिन वो सारी फेक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी ये बंदे कह रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े हैं, वो वैसे ताले लगाकर हर सामान उनका अंदर पड़ा है।